Do you know that computer science in IIT is not just a degree anymore? It's a dream of lakhs of students in India. Do you know why? Because computer science at IIT is just an ocean of opportunities, not just about few placement records. If I talk about placements, अगर आप इंडियन मार्केट की बात करें, then 25 lakhs per annum is the average salary of a computer science student at IIT. And आज इस वीडियो में हम उसी सारे opportunities के बारे में बात करेंगे. And also I'll share after passing out of a computer science student from any of the top IITs, आपकी क्या क्या जॉब मिल सकते हैं, उनके रोल क्या होते हैं, as well as हर एक जॉब की सैलरीज की रेंज क्या होते हैं, सारी चीज हम बात करेंगे. तो if you are such a person who are dreaming about those kind of jobs, about those kind of opportunities, and you want to be a part of CSE at IIT, then watch the video till the end. But before that, make sure you hit the like button and also don't forget to subscribe to my channel. So we'll divide the video in 3 parts. First, we'll discuss about the jobs that are related to industry. उसके बाद हम बात करेंगे academics, and at the end we'll talk about business and entrepreneurship, because this is now most students are focusing. Just like me and many of my other friends are also focusing on entrepreneurship and making their own business. So let's talk about all of these in detail. First, we will talk about industry. So industry की अगर बात करें, this is the choice of majority of the students. I mean, more than 85 to 90% of the students choose to be a part of industry, because अगर आप IIT की स्टूडेंट हो तो IIT की जो प्लेसमेंट सेशन होता है उसमें ऑलमोस्ट 300 कंपनीज आते हैं. तो अगर आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो तो आपके लिए 70 to 80 कंपनीज तो डेफिनेटली आएंगे. मोस्ट ऑफ द जॉब ऑफर्स दैट द कंपनीज मेक फॉर द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स एट IIT इज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग, यानी कि SDE. एंड दिस इज सच अ सेक्टर वेयर द जॉब इज वेरी वेरी मच फिजिबल, एंड बहुत लोगों की ड्रीम होता है टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड इन टॉप कंपनीज लाइक गूगल, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, लाइक Amazon, लाइक फ्लिपकार्ट, देन फोनपे, भारत पे, पेटीएम. देयर आर मल्टीपल अदर कंपनीज who are coming at each and every IIT just to make an offer to their computer science students. And not just computer science students, there are other psychological branch students like electronics, like electrical. So these students are also eligible for these software development job. But before that, if you're a GATE 22 aspirants, then for your revisions to make it quick and to remember all the subjects and all the chapters that you read, PrepLadder is going to bring you a new feature that is called Treasure. And for that, you don't need to pay anything. It is absolutely free. Of course, just download the PrepLadder app from the link in the description and use the Treasure from their app itself. So what Treasure is basically, Treasure is a revision tools that is designed by the GATE Dream Team. There'll be some flowcharts, there'll be some memory map, there'll be some tables, and it made in such a way that you can remember all the things that you have already covered. And it is really really helpful in the last few days in your GATE preparation, because you don't need to go back to your textbook and just read all the things that you have read. There's no time left. So that's why for quick revision, this is really really helpful. So in that Treasure, you get all the summaries of all the chapters and all the subjects that you have covered, and also you can go there and bookmark your favorite subjects or favorite topics that you want to read it again. So for quick revision in the very few days, like the 2-3 days before the GATE exam, the bookmark content will be really really useful. So you can just go there and select your subjects that you want to revise. Like all the subjects are separated, and you can select any of the subjects that you want to revise, and you get entire summary of the subjects and all the chapters are cleared. So why are you waiting? Just download the PrepLadder app and use this best free method for all the GATE 22 aspirants for quick revision and memory recall. तो इसका सैलरी रेंज क्या होता है? सैलरी, as I already talked, इसका सैलरी की अगर एवरेज सैलरी की बात करें, so अराउंड 22 LPA टू 25 LPA के रेंज में इसका एवरेज सैलरी होते हैं, एंड द नंबर्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर. हम लोग के टाइम पे एवरेज सैलरी था अराउंड 18 to 20 LPA. नाउ द सैलरीज हैव रीच्ड अप टू 25 LPA. ठीक है, अगर आप इन हैंड की बात करें तो इन हैंड आपको 16 to 18 LPA डेफिनेटली मिलेगा. उसके अलावा जो बाकी CTC का कंपोनेंट होता है, मेजर कंपोनेंट होता है आपकी स्टॉक्स, उसके साथ होता है जॉइनिंग बोनस. जॉइनिंग बोनस अगर हम मतलब लोएस्ट से स्टार्ट करें तो 1.5 लाख आपको तो जॉइनिंग बोनस एटलीस्ट मिलेगा. मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज प्रोवाइड एटलीस्ट 3 लाख ऑफ जॉइनिंग बोनस. आप जब कंपनी में ज्वाइन करोगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको 3 लाख इंस्टेंट क्रेडिट हो जाएगा. स्टॉक्स आपको मिलता है 4 साल के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गिवन 20 lakhs ऑफ स्टॉक्स, देन फॉर द 4 years you will get the entire 20 lakhs amount. अगर आप 2 साल में कंपनी छोड़ देते हो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 लाख की स्टॉक्स बचेगा, बाकी 10 लाख कंपनी के पास रह जाएगा. ठीक है. नाउ अपार्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, देयर आर फ्यू अदर रोल्स जस्ट लाइक
डेटा एनालिस्ट या फिर बिजनेस एनालिस्ट, उसका भी रोल सेम होता है। इफ द कंपनी इज गेटिंग लॉट ऑफ डेटा फ्रॉम देयर कस्टमर्स, तो आपको उसी डेटा से एनालिसिस करके कुछ इंसाइट निकालना है एंड उसी एनालिसिस के ऊपर बेस करके उसी कंपनीज का बिजनेस डिसीजन मेड होगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि कंपनीज को बिजनेस डिसीजन के लिए सबसे अच्छी बेहतर स्टेप क्या होगा। इसके बाद होता है डेटा साइंटिस्ट, जो कि एक हायर पोजीशन है डेटा एनालिस्ट से। तो डेटा साइंटिस्ट का रोल इज अ काइंड ऑफ मैनेजिंग रोल, कि आपको अगर आपके पास अगर डेटा है तो कौन सी स्टेप्स आपको फॉलो करना है, कौन से एल्गोरिदम में वो डेटा को फीड करना है, कौन से एल्गोरिदम यूज करके उसी डेटा से एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट जनरेट करना है, ये सारे डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद कुछ कंपनीज में होता है रिसर्च साइंटिस्ट, कुछ कंपनीज में होता है अप्लाइड साइंटिस्ट, कुछ कंपनीज में होता है मशीन लर्निंग इंजीनियर, डीप लर्निंग रिसर्चर, डीप लर्निंग इंजीनियर, एनएलपी इंजीनियर, ऐसे बहुत अलग अलग डिफरेंट स्पेसिफिक रोल होता है। तो दिस रोल्स आर स्पेशली रिजर्व फॉर द मास्टर स्टूडेंट्स। तो अगर आप मास्टर स्टूडेंट हो, आपके पास थोड़ा बहुत रिसर्च का भी आइडिया है, आपने बहुत अच्छी रिसर्च किया किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में, आपको पास ये सारे जॉब ऑफर मिलने की चांसेस है। बट फॉर अ बीटेक स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द जॉब ऑफर्स आर मेड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ओनली। नाउ द सेकंड टाइप्स ऑफ जॉब्स इज इन टर्म्स ऑफ योर एकेडमिक्स। तो एकेडमिक्स में क्या क्या जॉब मिल सकते हैं? इफ यू आर अ बीटेक स्टूडेंट जस्ट पासिंग आउट ऑफ कंप्यूटर साइंस डिग्री फ्रॉम IIT, तो you can directly go for PhD to any other IITs, or you may be directly going for a PhD to some foreign universities like Stanford, MIT, UCLA, UC Berkeley, प्रिंसटन, CMU, ऐसे बहुत जो बड़े बड़े रेपुटेड इंस्टीट्यूट होता है, आप उसमें जाके PhD में अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम बीटेक इटसेल्फ। आपको मास्टर्स करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ अगर आप एक मास्टर स्टूडेंट हो तो आप भी ये सेम पाथ फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक रिसर्च एक्सपीरियंस होगा, आपके पास कोर्स का भी तो नॉलेज होगा, IIT से एक डिग्री होगा, सो यू हैव अ बेटर चांस टू गेट अ PhD डिग्री फ्रॉम एनी ऑफ द टॉप रेपुटेड इंस्टीट्यूट। तो ज़्यादातर लोग अगर एकेडमिक्स में जाना चाहते हो, सो दे प्रेफर डूइंग अ PhD फ्रॉम द फॉरेन यूनिवर्सिटीज। तो अगर आपके पास एक डिग्री होगा, कंप्यूटर साइंस डिग्री फ्रॉम IIT, तो आपके पास वो रास्ते बहुत ही स्मूथ हो जाएगा, आपको इजीली एक PhD डिग्री मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास एकेडमिक्स अच्छी होता है। एंड गेटिंग ए PhD इन द फॉरेन यूनिवर्सिटीज रिक्वायर्स योर एकेडमिक्स टू बी अ टॉप नॉच। आपको एटलीस्ट 8.5 से 9 पॉइंट तक तो आपको लाना ही पड़ेगा। आपको अगर 9 से ज़्यादा है, 9.5 या फिर 10 पॉइंटर भी है, तो यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ गेटिंग ए PhD इन दोज फॉरेन इंस्टीट्यूट्स। उसके साथ साथ आपको रिसर्च का भी एक्सपोजर होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट टू जॉइन अ जॉब इन द एकेडमिक्स डिपार्टमेंट, तो आपके लिए रिसर्च असिस्टेंट एज वेल एज रिसर्च एसोसिएट पोजीशन खाली है। देयर आर सेवरल IITs हु हैव द ओपन पोजीशन फॉर द रिसर्च असिस्टेंट एज वेल एज रिसर्च एसोसिएट। तो आप उसी IIT में जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। देयर आर फ्यू ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट द प्रोफेसर्स आर डूइंग, तो उसी में आपको रिसर्च असिस्टेंट या फिर एसोसिएट बन के काम करना होगा। इफ यू हैव अ डिग्री फ्रॉम एनी ऑफ द IITs, तो यू हैव अ वेरी हाई चांस ऑफ गेटिंग अ जॉब देयर। अगर आपके पास रिसर्च की एक्सपोजर है, द सिमिलर काइंड ऑफ रिसर्च दैट द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स, तो आपको डेफिनेटली इजीली मिल जाएगा। अगर आपकी एक IIT डिग्री है तो उसमें सैलरी काफ़ी अच्छी होते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स। इफ़ आई से कि कुछ जगह पे 60, 70 या फिर 80,000 भी सैलरी हो सकता है। आपको पूरा की पूरा इन हैंड सैलरी की बात करूँ, इसमें कोई आपको स्टॉक्स या फिर जॉइनिंग बोनस ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। कुछ जगह पे 50-55,000 का भी कुछ रिसर्च पोजीशन है। आप आपके अगर बीटेक डिग्री है तो आप रिसर्च असिस्टेंट में अगर ज्वाइन करोगे तो 35 से 45,000 पर मंथ आपको इजीली मिल जाएगा। बट इफ यू आर अ मास्टर स्टूडेंट, आपके पास रिसर्च एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है, तो आप रिसर्च एसोसिएट बन के ज्वाइन कर सकते हो एंड उनकी सैलरी थोड़ा ज़्यादा होते हैं। तो PhD स्टूडेंट की बात करें, PhD की सैलरी होते हैं 35,000 पर मंथ इन द इंडियन पोजीशन। आप अगर IIT में जाओगे तो आपके 35,000 पर मंथ मिलेगा। बट अगर आप बाहर जाओगे फॉरेन कंट्री में, तो आपके काफ़ी अच्छी सैलरी मिल सकते हैं एज पर द फॉरेन स्टैंडर्ड्स। तो PhD की सैलरी वहाँ पे जॉब की सैलरी जैसे मिलता है, काफ़ी अच्छी मिलता है। सो दैट्स व्हाई मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर डूइंग PhD फ्रॉम द फॉरेन इटसेल्फ। नाउ उसके साथ अगर आप एक मास्टर स्टूडेंट हो एंड यू जस्ट पास आउट फ्रॉम द MTech और MS फ्रॉम IIT, तो आप एज अ प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हो कुछ अदर स्टेट गवर्नमेंट या फिर कुछ प्राइवेट कॉलेज में by giving the NET exam, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो फॉर दोज प्रोफेसर ऑल्सो सैलरी रेंज इज ह्यूज। आपको ऑलमोस्ट 80 to 90,000 पर मंथ तो इजीली मिल जाएगा। आपको कुछ साल की एक्सपीरियंस के बाद आपको मोर देन 1 लाख पर मंथ मिल जाएगा एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हिसाब की ज्वाइन करोगे, उसके बाद आपकी रिसर्च या फिर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद आप एसोसिएट बन जाओगे। उसके बाद अगर आपके पास PhD है तो यू विल बी promoted to professor. ठीक है। Now talking about the third part, which is the most interesting and the most demanding in this 2022,
अगर आप 2021 की भी बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर टू डूइंग दिस काइंड ऑफ जॉब्स and that is setting up their own business and start their entrepreneurship journey. Just like me and many of my other friends are doing the same, and most of the students, most of my friends who were working in a companies, they're leaving their job and starting to follow their business startup. And if you're talking about IIT, then majority of the students want to start their own business. So you recently might have heard about the Shark Tank India, which is the reality show hosted in Sony Pictures, जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बात होता है. आप अगर एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया लेके आओगे, आपके पास तुरंत फंडिंग में मिल सकते हैं. सो दिस इज द कल्चर दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू फॉलो. आपको आईआईटी से भी होना ज़रूरी नहीं है, आप किसी अलग कॉलेज से हो. अगर आप बीटेक पास आउट किया, आपके पास अगर आइडिया है किस टू स्टार्ट अ नया बिजनेस, तो आपके पास there are plenty of opportunities because this market is now open for all. क्योंकि देखो, अगर 100 स्टूडेंट है तो 90 स्टूडेंट्स तो प्लेसमेंट लेके चले जाते हैं. सिर्फ 5 से 10 स्टूडेंट पड़ा रहता है जो कि स्टार्टअप करने से लायक है. उसके बाद भी उनकी सक्सेस रेट होता है सिर्फ 1 से 2%. तो आपके लिए मार्केट अभी भी खुला है. सो मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेफर डूइंग स्टार्टिंग देयर ओन स्टार्टअप. तो अगर आप जानते हो जो कल्पित बीरबल जो कंप्यूटर साइंस फ्रॉम IIT बॉम्बे, उन्होंने उनकी स्टार्टअप स्टार्ट किया दिया फ्रॉम द सेकेंड ईयर इटसेल्फ. Just like that, there are several other students who are mostly focused about starting their own startup. तो ये भी काफ़ी डिमांडिंग होता है. तो इसमें सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो सैलरी स्पेसिफिक कुछ नहीं होते. आपके पास अगर एक अच्छी कंपनी एस्टेब्लिश हो जाए, यू विल बी गेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. तो आपको इन्वेस्टमेंट मिलने का भी बहुत चांसेस है. देयर विल बी मल्टीपल VC विल स्टार्ट टू इन्वेस्ट इन योर कंपनीज. अगर आपके पास आइडिया अच्छे है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छी है, आप अच्छी सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम को, obviously you will get a lot of investment from a lot of other companies, lot of other big people. So you just need to have an idea and you just need to have the ability to work to fulfill that idea. So these are all the 3 major parts जहाँ पे आपको job मिल सकते हैं after passing out from the computer science department and in any of the top IITs. आपको अगर कुछ questions है तो just put it down in the comment section. I'll try to reply as soon as possible. And also don't forget to subscribe to my channel for more videos and don't forget to like this video. मिलते हैं अगले वीडियो पे. Till then, take care and goodbye.